وعلى آله وصحبه الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری سیرت کے اس لیکچر میں جنگ احزاب، بیٹل آف ٹرینچ کے بعد کے جو اہم واقعات ہیں انشاءاللہ تعالی اسی کو جو ہم کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بنو قریظہ کی جو تاریخی جسے کہا جائے گا جو اس واقعے کی جو حیثیت ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو سارے اوپینینز ہیں اس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا۔ اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ واقعہ لیا تھا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنو قریظہ جب پہنچنے کا حکم دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھنا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جب سورج ڈوبنے لگا تو کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نماز چھوڑنا نہیں تھا، تو ان لوگوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں لیٹس لٹرلی فالو the words of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا، تو ہمیں بنو قریظہ پہنچ کر ہی جو ہے نماز ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ڈفرینٹ اوپینینز میں سے کسی کی بھی سرزنش نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ صحیح تھے اور آپ غلط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کو جو ہے جسے کہا جائے گا کہا ٹھیک ہے، درست ہے، ایز لانگ ایز نیت درست تھی اور ہم کوئی حرام کام نہیں کر رہے تھے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے جو اسلام کی جو نصوص ہیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے خلاف جاتا ہو، تو ڈفرنس جو ہے وہ اختلاف قابل قبول ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بہت اہم نقطہ جو ہے اس واقعے سے ہمارے فقہی اصولوں میں جو ہے وہ لایا گیا ہے، وہ یہ کہ بعض علماء جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہو تو نماز کے مقررہ وقت میں جو ہے ڈھیل دی جا سکتی ہے، اور یہی مسلک بخاری رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اب اس سے ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات ہے ترتیب کی، وہ بات ہے پرائیورٹیز کی، وہ بات ہے تدریج کی، وہ بات ہے ترتیب کی، کہ ہم کس طرح سے زندگی میں چیزوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو بالکل درست ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، خوف کی حالت میں بھی جو ہے صلاۃ الخوف کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چیزوں میں ایک ترتیب ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس ترتیب کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اسلام میں جو ہے کچھ ہدایات ہیں، کچھ جو ہیں وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، فرائض، اوکے، اور کچھ جو ہیں وہ نوافل ہیں۔ اب ہم جو ہے کہ نوافل کو ادا کرنے جائیں فرائض سے غافل ہو کر، تو وہ ہمارے دین میں جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جو شخص ضروری فرائض کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ نفلی اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سراسر گمراہ ہے۔ ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت فرائض کی ہے۔
मैं फर्ज नहीं अदा करूं, मैं फर्ज से गाफिल रहूं, लेकिन उसके मुकाबले में मैं बहुत सारी नफली इबादतें करने की कोशिश करूं या नफिल आमाल करने की कोशिश करूं, तो वो जो है वो गुमराही है। फिर ये कि ये फराइज जो है ना, दरअसल जैसे हमारा, अगर अगर हम एक बॉडी की मिसाल ले लें, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट, उसके उसके उसकी सेहत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ कार्ब खाएंगे या हम सिर्फ प्रोटीन खाएंगे या हम सिर्फ जो है वो फैट्स ही पे गुजारा करेंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, वो जो सारे हमने पढ़ रखे हैं। फिर ये कि उसे अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वरना क्या होगा, या तो जिस्म जो है बीमार होने लगेगा, या अगर हमने बहुत ज्यादा कोताही बरती तो हो सकता है वो हलाक भी हो जाए। इसी तरह दीन भी है, चाहे वो किसी फर्द इंडिविजुअल का मामला हो या किसी जमात का या ग्रुप का मामला हो, वो अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता जब तक कि वो अपने फराइज के बारे में, जो अल्लाह ताला ने चीजें फर्ज करार दी हैं, उन पर जो है अमल ना करे। अगर वो उन फराइज पर अमल नहीं करेगा तो ऐसा ही है जो उसके दीन को जो हलाक कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसकी दीन में जो है ज़ोफ पैदा कर देंगे। अब अ, ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो, हमारे पास जितना वक्त है, वक्त तो सबके पास उतना ही है, राइट, किसी का भी दिन जो है वो दिन और रात 24 आवर्स से ज्यादा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी 24 आवर्स की दिन और रात थे, हमारे पास भी 24 आवर्स की दिन और रात है। और हम खुद अपनी ही जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव है, जो बहुत कुछ कर गुजरते हैं उन 24 आवर्स में, और फिर उसके मुकाबले में हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं कि हम बहुत ही यू नो जिसे हम कहेंगे मामूली से ही एक्शंस में जो है हमारी वक्त जो है वो निकल जाता है, और हमें लगता है अरे हमारा जो है इतना वक्त जो है वो निकल गया। तो ये जरूरी है कि इंसान अपने जो भी उससे रिक्वायर्ड फराइज हैं उसके मुताबिक अपने वक्त की जो है तकसीम करे। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि हाँ ठीक है, हमारा दिन शुरू हो जाएगा, हमें जब वक्त मिलेगा हम जोहर अदा कर लेंगे, हम असर नहीं, हमें जोहर के वक्त, असर के वक्त और मगरिब के वक्त के अराउंड अपनी सारी एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन करना पड़ेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है हम आएंगे तो इसी तरह ये सारा, फजर और इशा जो है वो निस्बतन आसान है, इसलिए कि इंसान बहरहाल अपने घर में होता है और फिर भी उसके पास वो वक्त उसके अपने हाथ में होता है। लेकिन जोहर, असर और मगरिब ऐसे औकात हैं जब इंसान बाहर होता है, इंसान शायद घर में भी नहीं होता और एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। तो ये नहीं है कि मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, बल्कि हमें हमारा वक्त, हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे हमें शॉपिंग पे जाना हो, चाहे हमें किसी से मुलाकात के लिए जाना हो, या जो भी हमारी दूसरी काम है, उन्हें हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि एक फर्ज जो है वो हमें दूसरे फर्ज से गाफिल ना कर दे। और उससे भी अहम बात यह है कि कोई नफिल जो है वो हमें किसी फर्ज से गाफिल ना कर दे। अब देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मसलक है जिसमें बताया गया कि नहीं, डिले योर प्रेयर्स बट फर्स्ट रीच बनो कुरैजा, बिकॉज ये तो अब हम जब पढ़ रहे हैं लेटर ऑन तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा बनो कुरैजा ने इस तरह से जो है अपने आप को महसूर कर लिया। अदरवाइज एक बहुत बड़ा खतरा उस वक्त ये था कि बनु कुरैजा पीछे से आके जो है शब खून मार सकते थे, दोबारा से हमला कर सकते थे, राइट, ये पॉसिबिलिटी उस वक्त मौजूद थी। यही वजह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अभी इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि उस नुकसान को जो है रोकना है जो बनु कुरैजा से हमें पहुंच सकता है, जो मुसलमानों को पहुंच सकता है, जो एक बड़ी जमात को पहुंच सकता है। तो इस वक्त अगर नमाज के वक्त में थोड़ी ताखीर भी करना पड़े तो ये जो है जायज होगा। अब ये एक बहुत अहम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब हम ये देखें कि अगर सपोज एक 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 सर्जन है, राइट, उसे एक सर्जरी करना है जिसमें हो सकता है 5 घंटे लगेंगे। अब वो ये कहे कि नहीं भाई, मैं तो इतने टाइम से इतने वक्त ही सर्जरी करूंगा, वरना मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी नमाज जो है वो इस तरह से वो हो जाएगी, लाइक
मैं उसे अव्वल वक्त पे ही पढ़ूंगा और उसी तरह से जो है पढ़ूंगा। तो ये एक अच्छा मैंने जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, तरतीब की, चीजों को प्रायोरिटाइज करने की, ये इस हिकमत के मुनाफी होगा। तो गर्ज ये कि हमें हमें अपने आप को देखना है कि हम किस तरह से अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं। और ये एक अहम जिसे कहा जाएगा पहलू है, और ये हमें बहुत सारी जिसे हम कहेंगे कि हमारे लिए सहूलत पैदा करता है, हमारे दीन में, हमारे मामलात में, और इंशाल्लाह हमारी आखिरत में। अ, अ, इसीलिए जो है कभी भी जब भी हम दीन सिखाएं, खास तौर पे इस ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं वो किसी ना किसी तरह दीन को सिखाने का जो है वो काम अंजाम दे रहे हैं। तो हम कभी भी जो है ये तालीम जो है नहीं दें कि नवाफिल के लिए, चाहे वो तादाद में कितने ही ज्यादा हो, किसी भी तरह फराइज से गफलत पर। अगर हमने ये किया तो ये ऐसा ही है जैसे हम अपने, जिस तरह से एक जिस्म जो है, जो उसके बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो ना मिले तो वो बेकार और मुअत्तल हो जाएगा या हलाक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एक फर्द और एक माशरा अगर हमें फराइज से पहलू तय करेगा तो, और उसके मुकाबले में नवाफिल को अहमियत देगा, तो वो भी जो है इंतशार में मुब्तला हो जाएगा। अब इसके बाद जो है बनु कुरैजा का हमने देखा कि उन्होंने कहा कि साद बिन मुआज को जो है हमारा हकम बनाया जाए। और वट एवर साद बिन मुआज, जी, हाँ, आई मैं बताती हूँ आपको। तो जो साद बिन मुआज जो है वो जो है हमारा फैसला करेंगे। अब साद बिन मुआज ने जो है उनसे कहा कि ठीक है, आप अपनी किताब लाइए, आपकी किताब के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो है बाइबल की आयत कोट की थी, जिसमें उनकी ही किताबों में, उनके ही स्क्रिप्चर्स में जो है ये बात वजाहत के साथ मौजूद है कि क्या मामला किया जाए। ये जो रेफरेंस है, ये ड्यूटरोनॉमी, इट्स अ बुक ऑफ जेनेसिस की एक बुक है, ड्यूटरोनॉमी। ड्यूटरोनॉमी का रेफरेंस है, चैप्टर 20 है, और 10 to 15 जो उनकी वर्सेस हैं। तो वो ये जो वर्सेस हैं ड्यूटरोनॉमी की, दिस सेज इट्स अ जूइश लॉ, जिसमें ये कहा गया है कि व्हेन यू मार्च अप टू अटैक अ सिटी, make its people an offer of peace. If they accept and open their gates, all the people in it shall be subject to forced labor and shall work for you. तो अगर वो पीस के लिए, सुलह के लिए राजी हो जाएं तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उन सबको गुलाम बना लेना है। If they refuse to make peace and they engage you in battle, lay siege to that city. लेकिन अगर वो इंसिस्ट करें कि नहीं, हम जो है अमन और सुलह नहीं चाहते, हम आपका मुकाबला करेंगे, तो फिर उनका मुहासरा कर लीजिए। When the Lord your God delivers it into your hand, put to the sword all the men in it. और अगर मुहासरे में जो है आप कामयाबी हासिल कर लें और ये इलाका जो है आपके कब्जे में आ जाए, तो आपने क्या करना है? सारे जितने मर्द हैं उन्हें तलवार से हलाक करना है। As for the women, the children, the livestock, and everything else in the city, you may take these as plunder for yourselves. तो ये सारी, चाहे उनके बच्चे हैं, औरतें हैं, इनके रेवड़ हैं, इनके जो भी माल और इसबाब है, उन्हें जो है आप प्लंडर के तौर पर, माल गनीमत के तौर पर जो है ले सकते हैं। And you may use the plunder the Lord your God gives you from your enemies. और ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने हलाल कर दिया है। This is how you are to treat all the cities that are at a distance from you and do not belong to the nations nearby. तो ये फैसला जो है ये डिट्रोनॉमी की इस आयत के तहत साद बिन मुआज ने सुनवाया। ये जितने भी कॉम्बैटेंट्स हैं,
जो जंग में शरीक होने की हैसियत और ताकत रखते हैं, उन्हें जो है बगावत की सजा दी गई। अब देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी जो है बहुत ज्यादा अ, यहूदियों में इस वक्त जब उन्हें कत्ल किया जा रहा था तो बहुत बहादुरी का सबूत दिया। और अ, तो हम ये देखते हैं कि बाज औक़ात जो लोग अ, हम्म, एक ऐसे मौक़िफ़ पर जो हक नहीं है उस पर भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ जो है वो खड़े होते हैं। तो वो जो हई इब्ने अख्तब था, जब उसको सजा के लिए लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं आपकी दुश्मनी के सिलसिले में अपने नफ्स को मलामत नहीं करता। यानी वो ये कहता है कि मुझे इस बात का कोई गम और खौफ नहीं है कि मैंने ये जो स्टैंड आपके अगेंस्ट लिया, तो अब जब कि मुझे मौत मिलने वाली है, सो आई फील रिग्रेट, नो, आई डोंट फील एनी रिग्रेट्स फॉर दैट। लेकिन अल्लाह ताला जिसे रुस्वा व नामुराद करता है वो हो जाता है। तो उसने भी यही ओपिनियन दिया। तो लेकिन वो लीडर, राइट, वो जिया भी तो लीडर की तरह और वो मर भी रहा है तो लीडर की तरह एक शान के साथ। फिर वो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो कहने लगा कि लोगों, अल्लाह के फैसले में कोई चूं चरा नहीं। ये तकदीर का नौश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने बजनी इसराइल पर लिख दिया था। तो फर्ज ये कि जो वो लोग, और हमने ये देखा राइट कि वो लोग जो जहालत में भी बहुत हाई आइडियल्स के साथ थे, जब वो इस्लाम में आए तो वो यहाँ पर भी उसी तरह से शाइन हुए और उसी तरह से जो उन्होंने इस्लाम को तक़वियत बख्शी और मुसलमानों में जो है दे वर सो वेरी कंट्रीब्यूटिंग, और उनका एक बहुत जो है कंट्रीब्यूशन रहा। तो गर्ज ये थे, अ, ये जो पूरा वाकया है बनु कुरैजा का, जंग अहज़ाब का, इसके बाद एक बहुत बड़ा सद्दबाब एक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और वो सारे लोग जो इतनी बड़ी फौज लेकर मुसलमानों को नीस्त नाबूद करने के लिए आए थे, वो जो है इस तरह से आई मीन सूरतुल अहज़ाब ही की आयत जो है 25 to 27, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुफ्फार का मुंह फेर दिया। वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने हमला आवरों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी किलों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके अम्वाल का वारिस बना दिया, और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो यू सी, एक बात जो बहुत वाज़ेह तौर पे हमें अपने जहनों में, अपने दिलों में बिठानी है, वो ये कि करने वाली जात, इज्जत देने वाली जात, फतेह देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। जो तौहीद का क्रक्स है वो ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम बातिल की जो है परस्तिश और पूजा नहीं कर रहे। डेफिनेटली वो तो है कि हम बुत की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम किसी औलिया अल्लाह को जो है अल्लाह की तरह इबादत नहीं कर रहे हैं, उनसे दुआ नहीं मांगी, ये तो डेफिनेटली है इसका मानी। लेकिन जो तौहीद का इसेंस है, जो हमें स्कॉलर्स बताते हैं, तौहीद का इसेंस ये है कि इंसान को अल्लाह पर इतना रिलायंस हो जाए, अल्लाह पर इस किस्म का एतमाद उसे हासिल हो जाए कि फिर जो है उसे लोगों की एहतियाज और वो लोगों से जो है बिल्कुल गनी हो जाना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका एक कुरानी से एविडेंस आई गिव यू।
सूरतुल हिज्र है, सूरतुल हिज्र की आयत है ना, these are some one of the most beautiful passages in the glorious Quran. 3 आयत हैं. सूरतुल हिज्र is आयत सूरह 15. इसकी लास्ट 3 जो आयत हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात फरमाई है. वो बात क्या है? वो बात ये है, सूरतुल हिज्र चैप्टर नंबर 51 वर्सेस 97 to 99. ये जो मैं आपसे बता रही हूँ ना, लाइक व्हाट हाउ डिड आई कम हियर. So the scholars have told us the essence of Tawheed. What is the essence of Tawheed? Essence of Tawheed is that I I I single out Allah subhanahu wa ta'ala in all my affairs. All right. तो उसका जो एक रिजल्ट है, उसका जो एक फ्रूट है, वो हमें इन आयात से समझने के लिए मिल रहा है. वो कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमाते हैं, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुक बिमा यक़ूलून. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारा सीना भिजता है, कि तुम्हें तकलीफ होती है उन बातों से जो ये लोग तुम्हें कहते हैं. अब एक जो रद्द अमल होगा कि लोग कह रहे हैं ना, कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, है ना. एक ये रद्द अमल होता है. लेकिन कुरान करीम जो है उसको इस तरह से कह के उसको उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा है. कुरान करीम इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि लफ्ज जो है वो तीर की तरह होते हैं, वो जख्मी कर देते हैं इंसान को. और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत फरमाई कि हम जानते हैं कि वो जो कहते हैं उससे तुम्हारा दिल जो है वो भिजता है, कि तुम्हारा यदीक़ु सद्रुक बिमा यक़ूलून, तुम्हारा सदर, तुम्हारा सीना. ये ज़य्यक़ुन क्या है? आई मीन इट्स अ कंडीशन वेयर यू फील कंस्ट्रेन्ड. तो वर्ड्स जो है वो इतने लीथल हो सकते हैं कि वो इंसान को जो है पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं, उसे लागर कर देते हैं. अब इसका क्या हल? तो यहाँ पे फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, कि क्या करो? अपने रब की तस्बीह बयान करो. सब्बिह फरमाया, हम्द फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन. फिर फरमाया सजदा करो. ऑल राइट. और आखिर में फरमाया 99 में वाबुद रब्बक. और शायद उन सब के लिए जो एक जामे लफ्ज है वाबुद. ऑल राइट. के अपने रब की इबादत करो. हत्ता याती अकल यकीन. और कब तक? जब तक कि तुम्हारे लिए जो है ये जख्म जो है वो ताजा हो, या हर वक्त जब जख्म लग रहा हो. नो, हत्ता याती अकल यकीन, जब तक कि तुम्हें वो यकीन. यकीन से मुराद है यहाँ पर मौत, सर्टेनिटी, द टाइम ऑफ सर्टेनिटी, या और भी बहुत सारे दूसरे इसके इंटरप्रिटेशन, बट हत्ता याती अकल यकीन. अब हमें तो लगेगा ठीक है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो या तो ये कि इंसान शतरमुर्ग की पॉलिसी अख्तियार कर ले कि हमें ध्यान ही नहीं देना, पर ऐसा होता नहीं है. आप एक बार इग्नोर करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, उसके बाद नहीं इग्नोर कर पाएंगे शायद. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें इसके लिए ये सोल्यूशन दे रहे हैं. तो ये तौहीद के एसेंस को जब हम समझने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सूरतुल हिज्र का रेफरेंस इसलिए दिया, ये बताने के लिए कि हाउ तौहीद हेल्प्स इवन व्हेन समबडी इज यूजिंग सम वेरी लीथल एंड टॉक्सिक वर्ड्स अगेंस्ट यू, which could be so very ordinary for somebody else. और ये एक ऐसी चीज है जो हम हर वक्त एक्सपीरियंस करते रहते हैं, राइट. कि लोगों के लफ्ज, लोगों के अल्फाज, ये सारी चीजें जो हैं सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं जो है वो एक्सपीरियंस में आती हैं इंसान. तो उसका जो सोल्यूशन बताया अल्लाह ताला ने, वो ये कि अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द, अल्लाह को सजदा, और ये कि उसकी इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए.
तो ये क्या सोल्यूशन हुआ? तो ये सवाल कर सकता है ना। हमें मेरा मेरा दिल दुख रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तो देखिए ये सोल्यूशन कैसे कारगर है। तस्बीह का क्या मतलब है? तस्बीह का मतलब है वेर आई से के हर नुक्स से पाक, हर फॉल्ट से पाक अगर कोई जात है, अगर कोई फॉल्टलेस है, तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब हो सकता है कि जो बात मुझे कही जा रही है वो रियलिटी में हो मेरे अंदर, वो एक नुक्स हो, वो एक फॉल्ट हो, वो एक खराबी हो मुझ में, और सामने वाला कोई गलत नहीं कह रहा, लेकिन बाज औक़ात सही बात भी तकलीफ पहुंचा सकती है। तो अगरचे कि वो सही बोल रहा है, इफ इट इज राइट, और ये फॉल्ट मुझ में है, सो व्हेन आई डू तस्बीह ऑफ माय लॉर्ड, आई रिमाइंड माई सेल्फ कि फॉल्टलेस तो कोई भी नहीं है ना, फॉल्टलेस सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। फाइन, ओके, कामिल मैं नहीं हूँ, ये फॉल्ट मेरे अंदर हो सकता है, एंड इट गिव लॉट ऑफ सोलेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। दूसरा ये कि हम, अगर वो बात जो बोली जा रही है, जिससे दिल दुख रहा है, वो गलत है, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर भी जो है हम के जरिए अल्लाह ताला जो है उसे उसे मुझे कह रहा है कि सारी तारीफें, सारी प्रेजेस जो है वो सिर्फ अल्लाह ही को सजावार है। हम क्यों चाहते हैं कि हर कोई जो है वो हमसे एग्री करे, हमें अप्रिशिएट करे, हमें एक्नॉलेज करे? हमेशा ऐसा नहीं होगा ना जिंदगी में। तो हम, ये जो एक माने जाने की जो एक चाहत इंसान के अंदर है कि हाँ मुझे तस्लीम किया जाए, मुझे एक्नॉलेज किया जाए, और शायद फिर मुझे अप्रिशिएट भी किया जाए, राइट। और फिर जब वो नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, दिल जो है वो दुख रहा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे नो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, ये सारी तारीफें तो सिर्फ अल्लाह ही को सजावार है। अगर मेरे पास कुछ है भी तो वो अल्लाह ही का दिया हुआ है, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी टाइम वी डू सूरतुल फातिहा, दैट अगर कोई अच्छाई सादिर भी हो गई है मुझसे जिंदगी में, तो वो मेरा कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, जो मेरे जरिए से अल्लाह ताला दुनिया में करवा रहा है। Kibr, pride, there's no place for that, in the canvas of Iman, for the pride, for thinking that, oh, I'm, कि मैं कुछ हूँ। और फिर फरमाया सजदा, सबमिट कर दो अपने आप, चाहे वो सही हो, जो बात तुम्हारे लिए बोली जा रही है, चाहे वो गलत हो, हर हाल में अपने आप को इसके आगे बिछा दो, अपने रब के आगे। सजदे में इंसान अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है। सो Imam Ghazali rahimahullah, when he is explaining the essence of Tawheed in his Ihya Ulumuddin, he says that Tawheed का एक essence ये है कि वो फिर इंसान को दूसरों पे गुस्सा नहीं आता। इंसान इस तरह से इंसान को गुस्सा आता क्यों है? I mean, that was very difficult for me to understand जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा या उलूम में, कि तौहीद का एसेंस ये है कि फिर आपको लोगों पे गुस्सा नहीं आता। अरे गुस्सा कैसे नहीं आएगा? गुस्सा तो दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। दिस इज सो नेचुरल टू द कॉम्पोजिशन दैट आई हैव। तो ही सेइंग दैट नहीं, तौहीद का जो एसेंस है, जो रिलायंस है अल्लाह ताला पर, जो तवक्कुल है, वो आपको इससे बिल्कुल गनी कर देता है। तो बताओ, तो फिर अगर इसकी एनालिसिस की जाए तो गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा इसलिए आ रहा है मुझे कि वो जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरा मौकफ है, वो सामने वाला उससे अग्री नहीं कर रहा है। तो गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो चाह रही हूँ, मैं जो सोचती हूँ, जो आई मीन इट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट, व्हाट माय ओपिनियन इज, राइट। और तो ही हमें गुस्सा आता है ना। सो एट द अंडरलाइंग फैक्टर ऑफ द, ये जो गुस्सा है वो है, वो मेरा ईगो है ना कहीं, मेरा सेंस कि नहीं मैं सही हूँ और तुम गलत हो, जो मैं बोल रही हूँ वो करेक्ट है। तो वो कभी गुस्से की शक्ल इख्तियार करता है, अगर इख्तियार ना हो तो चिड़चिड़ाहट की शक्ल इख्तियार करता है। बट वी ऑल नो दैट these all these emotions and all these things,
وہ کس طرح سے ہم کو خود جو ہے وہ کمزور کرتی ہیں. ایک انسان ہمیشہ اسٹیٹ آف اینگر میں یا اسٹیٹ آف فرسٹریشن میں نہیں رہ سکتا. وہ کس طرح سے اس کو پل ڈاؤن کرتی ہیں، اس کی قوتوں کو. تو پھر سمجھ آئے کہ اچھا یہ جو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ توحید کا ایسنس یہ ہے کہ پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. Because when you start thinking, oh, what I am faultless. I mean, I can't be faultless. It's only Allah subhanahu wa ta'ala who's faultless. That's why I have to say subhanallah. I mean, میری کیا تعریف, میری کیا praises. All the praises belong to Allah subhanahu wa ta'ala. دی وسجد, اور یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے. تو کسی کا بولا ہوا جو ہے وہ جب تیر کی طرح زخم لگاتا ہے تو اس کا جو سلیوشن قرآن پیش کر رہا ہے وہ صرف اور صرف توحید ہے. کہ توحید جو ہے وہ یہ ساری شکلیں جو ہے اختیار کر رہی ہے. اللہ کی تسبیح, اللہ کی حمد, اللہ کا سجدہ, اور یہ کہ اللہ کی کو معبود مان کر جو ہے اس کی عبادت, یہ جو ہے so this is what is the essence of توحید. اور ہم جو ہے یہ اس توحید کے اسینس پر اس لیے یہاں پر ہم پہنچے تھے ہمارے اس پوائنٹ پہ, بیکاز ہم سورۃ الاحزاب کی آیات 25 to 7 کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں فتح بھی حاصل ہو گئی ہے, تم سکسیسفل بھی ہو گئے ہو, تمہاری اسٹریٹجی کامیاب بھی ہو گئی ہے, تو یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری اچیومنٹس تمہارے لیے پاسبل کی ہے. یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی بڑائی نہیں ہے. All the praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what Tawheed is. Tawheed makes me single out Allah subhanahu wa ta'ala for you see in every emotion of my life as well. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی یہ اسینس دے توحید کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی غنی کر دے لوگوں سے نا, ہمیں کسی کی احتیاج نہ رہے, محتاج نہ رہے اپنی خوشیوں کے لیے کہ کوئی ہمیں ایکسیپٹ کرے, کوئی ہماری تعریف کرے, کوئی ہمیں پریز کرے, کوئی ہمیں کہے کہ ہاں ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری پیٹھ تھپتھپائے تو پھر ہمیں لگے نہیں ہمیں کرنا چاہیے. نو, may Allah Ta'ala give us that sense of purpose that emanates from Tawheed, from La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the conviction to walk, to make the Tawheed the reality of our lives, inshallah. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹ, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ بہت اہم واقعات جو ہیں ہم دیکھیں گے جو پیش آ رہے ہیں. اس میں سے واقعات جو ہے ایک ابو لبابہ کا واقعہ ہے. I don't know how Abu Lubaba is so much there, in Madani period, and it's so interesting to speak about Abu Lubaba. I don't know, I find Abu Lubaba's entire episode in the first instance it was very intriguing. کہ ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہوا, ایسا بھی کسی نے کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محبت کے ساتھ اس سے ڈیل کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو, give it, no Abu Lubaba. Abu Lubaba saying no, my sense of justice does not allow me. And آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے how dare you do that. No, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ابو لبابہ سے نہیں. اب اس کے بعد let's see Abu Lubaba in the light of this incident, where ابو قریظہ کے پاس جب وہ بات کرنے گئے تو انہوں نے ابو قریظہ نے جب ان سے پوچھا, قریظہ والوں نے جب ان سے پوچھا کہ what if we surrender, تو ابو لبابہ نے کہا ہاں گڈ, بٹ ایک جیسچر جو ہے انہوں نے کر دیا. اینڈ the moment he did that gesture he realized کہ انہوں نے خیانت کر دی. وہ جیسچر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کے ایسے کہا ٹھیک ہے اگر تم سرنڈر بھی کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ تم ابھی جان بخش دی جائے گی, اب تو تمہارا معاملہ جو بغاوت جو تم نے کی ہے, جو تم نے دھوکہ دیا ہے, جو ٹریجن کیا ہے, وہ تم کو ملنے ہی والا ہے. But the moment he did that, he realized کہ یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ایکشن, یہ جیسچر مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کے کفارے کے طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو
ایک ستون سے باندھ لیا مسجد نبوی کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان ساری مہم سے فارغ ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ ابو لبابہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو لبابہ فیلٹ کہ ان سے ایک ایسی مسٹیک ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے باندھ لیا ستون سے, اور کہا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے بری نہیں کر دے گا, میں جو ہوں اپنے آپ کو اس سے نہیں, اس ستون سے نہیں کھولوں گا. تو یہ ہوتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی بیٹی آتی, ان کے ستون سے ان کو کھولتی, وہ اپنی نماز ادا کرتے, پھر جو ہے وہ اسی سزا میں چلی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بابا سے کہا کہ بھائی تم میرے پاس آ جاتے. سو تمہیں اتنی مشقت بھی نہیں برداشت کرنی پڑتی اب, کیونکہ تم نے خود ہی ایک ڈیسیژن لیا ہے. So now you wait for whatever Allah subhanahu wa ta'ala decides for you. تو اب جو ہے یہ اسی طرح سے اپنے دیکھتے ہیں کہ اس سے بندھے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے I mean, it seems the historians write that it was around 40 days, after 40 days, Allah Rabbul Alameen revealed these verses from Surah At-Tawbah, chapter number 9, verses 102, 104, where Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَعِيًّا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے, ان کا عمل مخلوط ہے, مکسڈ ہے, کچھ نیک ہے اور کچھ بد بھی ہے. بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو غرض یہ کہ ابو لبابہ کے پاس جب یہ خوشخبری آئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی برات جو ہے وہ نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے. اب ان کیا سچے اور کھرے لوگ تھے یہ کہ ان کے یہ جو بات سوچتے تھے, جو ان کے ایموشنز تھے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا تھا اور اس کا بھی رپلائی جو ہے وہ اپنے نبی کی زبان سے جو ہے وہ بھجوا دیا کرتا تھا. تو علامہ اقبال کا یہ شعر کتنی خوبصورتی سے ان پر چسپاں ہوتا ہے کہ I'm forgetting the first مصرع. اٹھتے ہیں حجابہ پھر کرتے ہیں خطابہ, آفاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کہ آسمان سے آتا ہے انسان جو گریا نالا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے, جب آہوے گزاری کرتا ہے, آفاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ جو شعر میں جو تصویر کھینچی گئی ہے that we see in the سیرہ of نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے یہ آہوہ گزاری کی, انہوں نے جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برات قرآن کریم میں جو ہے نازل فرما دی. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ, اور جو ہے ان کے مال میں سے جو ہے کچھ صدقہ لے لو, تطہرہم وتزکیہم بہا, تاکہ جو ہے تم ان کی تطہیر کر دو, تاکہ تم جو ہے ان کا تزکیہ کر دو, بیا وصلی علیہم انا صلواتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. تاکہ یہ جو صلوات ہے ان کے لیے ایک سیکیورٹی کا کام کرے, اور یہ کہ اللہ جو ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہ کہ آیت نمبر 104 میں اس کی مزید وضاحت فرمائی أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ, کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے عن عبادہ, اپنے عباد سے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو جو ہے ایز اے شیلڈ کے طور پر جو ہے وہ
मरोएकार लाता है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए और हम अल्लाह की राह में सदका करें, खैरात करें कुफारे के तौर पर, तो ये हमारे तज़किये के लिए, हमारी तत्हीर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मीन्स है। हमें ये तालीम भी कुरान करीम से मिलती है। अब अबू लुबाबा ने जब ये आयत सुनी तो अबू लुबाबा का रद्द अमल ये था कि वो अपनी सारा का सारा बाग जो है, अपनी जो सारी जायदाद थी वो दे देना चाहते थे कुफारे के तौर पर। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ये बात पेश की। आपने फरमाया नहीं अबू लुबाबा, नॉट ऑल। तो अबू लुबाबा ने कहा अच्छा हाफ। फिर आपने फरमाया नो नॉट इवन हाफ। सो देन ही सेड नो, देन वन थर्ड। हालांकि अगर अल्लाह ताला ने ये स्पेसिफिकेशन नहीं किया था कि वो अपना सारा माल जो सदके के तौर पे दे दो, अपने गुनाहों के कफारे के तौर पे अपना आधा माल दे दो या अपना वन थर्ड दे दो। अल्लाह तो फरमाया था कि कुछ माल अपना दे दो सदके के तौर पे और कफारे के तौर पर। लेकिन अबू लुबाबा जो है, जो एक पीस ऑफ लैंड जब आपसे समय मशवरा दिया था उन्हें, तो दे दो ना इस यहूदी को, चाहे उसका क्लेम गलत ही है। लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, आई विल नॉट, आई डोंट वांट टू डू दिस, थैंक यू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट यहाँ पे वही अबू लुबाबा हैं जो आ, आ, जो अब जो है आ, आ, अपना सारा के सारा असासा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना चाहते हैं। सो वी सी दिस दैट ये जो रियल तारीफ है जो हम अपने यहाँ बहुत पढ़ते हैं अपने इस्लामिक लिटरेचर में, जुहद। व्हाट इज जुहद? जुहद जो है, हम उसकी तारीफों में ऐसा लगता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, और जो बहुत सादा पहनता है, बहुत सादा रहता है। तो जुहद का वो एक आउटवर्ड अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन जो रियल जुहद है, जो रियल सेंस ऑफ जुहद है, वो ये कि इंसान के दिल में नहीं होती मोहब्बत माल की। तो जुहद का मतलब ये नहीं है कि इंसान फकीरी इख्तियार करे, इंसान के पास कुछ है ही नहीं। अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप जोहद ही प्रैक्टिस करोगे ना। फिर आप क्या, आपके पास जोहद के अलावा, वो आउटवर्ड जोहद के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये है रियल जोहद जो अबू लुबाबा। हाँ, गना भी है। गना, गना भी एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट, ओनली अल्लाह के सामने अपनी एहतियाज को रखे। बस जुहद ये है कि वो इंसान के इंसान के दिल में जो है इसकी मोहब्बत नहीं जड़ पकड़ने पाए। तो इसीलिए हाँ, दीन में एक वर्चू जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया है वो है सखावत। ये बताया गया है कि मोमिन जो है वो कभी कंजूस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बखील, बिकॉज बुखल जो है, बुखल जो है उसके अंडरलाइन जो अ, अ, जो इमोशन है वो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया कम हो जाएगी ना, मेरा माल कम हो, तो दुनिया इतनी ज्यादा मेरे अंदर पैर पसारे हुए है कि आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट। तो इसीलिए सखावत या सखी होना जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम रिक्वायरमेंट है। और जुहद जो है उसका एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन हमारे वहाँ जैसे हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को दीन के डिस्टॉर्ट किया, एक बहुत अलग उसको तस्वीर पेश की, तो हमने जोहद को भी फकीरी के साथ जो है इक्वेट कर लिया। हमें लगा कि जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत बड़ा जाहिद है, जिसके पास दुनिया है ही नहीं। नहीं, पर जुहद, रियल जुहद तो वो है कि जब दुनिया आपके पास है और फिर आप उसकी मोहब्बत को इख्तियार ना करें। जिसके पास दुनिया है ही नहीं वो कैसे क्लेम करेगा कि मुझे दुनिया की मोहब्बत ही नहीं? इसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे दीन की सही समझ अता करे। हमें अल्लाह ताला गुमराही से बचाए, बिद्दतों से बचाए, तहरीफात से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बातिल को हक मानने से बचा ले। अल्लाह ताला हमें, अभी देखिए बुखल का ही एक दूसरा लफ्ज है जो कुरान करीम इस्तेमाल करता है, शोहा नफ्स। शोहा नफ्स, शोहा नफ्स क्या है?
शुहा नफ्स ये है कि अ, कि अपने I don't know, उसके लिए एक बेहतर वर्ड क्या हो सकता है शुहा नफ्स के लिए? शुहा तंगी। नफ्स ये, हाँ तंगी, राइट, तंगी, तंगी, दिल की तंगी। अभी किसी ने किसी और की तारीफ कर दी, सपोज देयर आर टू एम्प्लॉइज या दो लोग हैं, या हम दो टीचर्स हैं, है ना, दूसरी की कर दी, मेरी नहीं करी, तो मुझे बुरा लग गया, मेरा दिल भिजने लगा। सो सो दिल की तंगी बहुत अलग अलग तरह से जो है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। ऑलराइट, so these are, I mean, there are so many terms that the Quran employs, you know. बुखल को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया, शुहा नफ्स को एक जगह इस्तेमाल किया। तो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत माल खर्च करता हूँ, मैं बखील नहीं हूँ। लेकिन वो जो अंडरलाइन हो सकता है, वो माल को देने में, आई मीन आउटवर्डली बखील ना हो, लेकिन वो एक तंगी जो है उसके अंदर की, इट मे मैनिफेस्ट इन सम अदर वे। तो इसलिए ये कितना जरूरी है कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, एंड देन वी आल्सो नो, यू नो, are the what are the instructions given by Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, how we are to deal with these emotions, how we are supposed to uh, utilize, because emotions भी जो है वो एक कुव्वत है ना जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। ये वही इमोशंस हैं जिनके जरिए से हम अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत की सरशारी को फील कर सकते हैं, राइट। हम अपने अंदर शुजात, बहादुरी, सच्चाई, ये सब भी क्या है इन द सेंस, ये पहले एक इमोशन की शक्ल इख्तियार है। तो इमोशंस बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड, हाउ आई एम्प्लॉय दीज इमोशंस फॉर माय पर्पस, एंड माय पर्पस इन लाइफ इज वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, that I have not created the jinn and the men except to worship me. तो अल्लाह ताला हमें अपने इस मकसद हयात से मकसद हयात से गाफिल होने से बचा ले। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में तौहीद का ये रियल एसेंस शामिल फरमा दे, जहाँ हमें अल्लाह ताला गनी कर दे, हमें किसी की एहतियाज ना रहे, हमारा सारा रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, और हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमा ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु शुक्रान, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु शुक्रान।